السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ حروف اور حرکات ملنے سے الفاظ بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب الفاظ جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک با معنی الفاظ اور ایک بے معنی الفاظ، کیونکہ ہم قرآن کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ صرف با معنی الفاظ پہ بات کریں گے۔ اور با معنی الفاظ کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ کلمہ کی فردر جو ہے وہ 3 اقسام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم نے اسم کو پڑھنا شروع کیا ہوا ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ اسم جنس کے حساب سے کیسا ہوگا۔ پہلے ہم نے اسم کی پہچان دیکھی کہ تنوین اور الف لام سے جو اسم شروع ہو وہ اسم کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ پھر وہ جنس اس کی چیک کی کہ وہ مذکر ہے یا مونس ہے۔ پھر ہم نے مونس کے لیے کچھ جو ہے وہ پڑھے تھے چارٹ، ہم نے دیکھا تھا، ایک پکچر فکس کی تھی کہ اگر اس پکچر میں فٹ آ رہا ہے تو وہ مونس ہے، ادروائز وہ مذکر ہے۔ اسی طرح سے پھر ہم نے عدد دیکھا، عدد میں ہم نے واحد، مثنیٰ اور جمع کو دیکھا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے اعراب دیکھے تھے کہ اعراب جو ہے وہ اسم مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں لاسٹ میں وسعت کو۔ وسعت میں کیا تھا کہ نکرہ ہے اسم یا معرفہ ہے۔ تو اس کے لیے کچھ ہم نے پوائنٹس جو ہیں وہ لاسٹ کلاس میں پڑھے تھے، کچھ انشاءاللہ ہم آج ڈسکس کریں گے۔ تو ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اب۔ تو اب ہم نے اعراب کے حساب سے دیکھا تھا کہ اگر اسم جو ہے وہ واحد مذکر یا واحد مونس ہے یا جمع مکسر مذکر جمع مکسر مونس ہے تو وہ حرکت کے ساتھ پہچانی جاتی ہے، یعنی کہ کلمہ کے آخر میں اگر پیش یا دو پیش ہے تو وہ اسم مرفوع ہوگا۔ کلمہ کے آخر میں زبر دو زبر ہے تو وہ اسم منصوب ہوگا، اور کلمہ کے آخر میں اگر زیر یا دو زیر ہے تو وہ کلمہ مجرور ہوگا۔ اور اسی طرح سے پھر ہم نے دیکھا تھا کہ مثنیٰ مذکر مثنیٰ مؤنث جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث کو حروف کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، یعنی کہ آخر میں جو آوازیں ہم نے یاد کی تھی نا، آنی، اینی اور جو ہے وہ آتن اور آتین وغیرہ کی، اور جمع کے لیے اونا، جمع مذکر کے لیے اونا اور اینا کی آوازیں ہم نے یاد کی تھی۔ ان آوازوں سے پہچانا جائے گا کہ اسم مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے میرے خیال میں یہ تو پرانا ہو گیا ہے لیسن، انشاءاللہ اس کی تو اب سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب ہم نے آگے نیکسٹ دیکھا تھا کہ اسم نکیرہ ہے یا معرفہ ہے۔ نکیرہ مین دیٹ کہ کوئی بھی عام بات، ٹھیک ہے، جو سب سے کہی جا رہی ہو، لیکن معرفہ کا مطلب ہے کہ وہ خاص کسی پرسن کو پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے اور وہ خاص اسی کے لیے ہے، تو وہ ہے معرفہ، ٹھیک ہے؟ تو اس میں پھر ہم نے دیکھی تھی فردر 7 ٹائپس دیکھی تھی کہ ایک تھا کہ معرف باللام، ایک تھا لام، ضمائر، اسم الموصول، اسم الاشارہ، مضاف الی المعرفہ اور منادا، جس میں سے ہم نے معرف باللام پڑھا، ٹھیک ہے؟ معرف باللام میں کیا تھا کہ مسلمون یہ نکرہ اسم تھا، یعنی کہ اس کے اوپر تنوین ہے تو آپ کو یہ نکرہ اسم کی یہ پہچان ہے، ٹھیک ہے؟ مسلمون ایک مسلمان، یعنی کہ اب کوئی بھی مسلمان، پوری دنیا میں سے کوئی بھی مسلمان، لیکن جب ہم المسلموں کہیں گے تو ایک خاص مسلمان کی طرف اشارہ ہوگا، یعنی کہ مسلمون سے پہلے الف لام کا داخلہ کر دیا جائے۔ جب الف لام کلمہ میں داخل ہوتا ہے تو تنوین آٹومیٹکلی ریموو ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ عربی کا اسلوب ہے، ٹھیک ہے؟ تو المسلموں ہو گیا، الف لام داخل ہوا اور تنوین اینڈ سے ختم ہو کر ایک حرکت رہ گئی تو یہ بن گیا المسلموں۔ اسی طرح سے کتابن کوئی بھی کتاب، یعنی کہ وہ کتاب ایس ایس ٹی، سائنس، انگلش، مطلب کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب الکتابو لگ گیا الف لام لگنے کی وجہ سے وہ کتاب خاص ہو گئی، یعنی کہ قرآن مجید کی بات کی جا رہی ہے اب یہاں پر، کہ خاص کتاب کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ حرکت رہ گئی پیچھے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ نکیرہ اسم جو ہے وہ اس کا مفرد، مثنیٰ اور جمع، اور معرفہ اسم کا مفرد، مثنیٰ اور جمع دونوں سیم ہوتے ہیں، یعنی کہ اوزان اور آوازیں وہی سیم آئیں گی، جیسے صادقن، صادقن، صادقین، صادقانی، صادقینی، صادقینی، صادقون، صادقین، صادقین، یعنی کہ یہ نکرہ بھی اسی آواز پہ پڑھا جا رہا ہے،
जबकि मारिफा में क्या फर्क आएगा कि शुरू में सिर्फ अलिफ लाम दाखिल हो जाएगा और आखिर में अलिफ लाम दाखिल होने की वजह से जो आखिरी मुफरद में जो तनवीन रहनी थी वो तनवीन खत्म हो जाएगी। पढ़ेंगे इसमें क्योंकि अलिफ लाम के बाद आपको तशदीद मिल रही है तो इसमें आप अलिफ लाम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा अस्सादिकु, अस्सादिकी, अस्सादिका और अस्सादिकी। मुसन्ना के लिए हो जाएगा अस्सादिकानी, अस्सादिकैनी और अस्सादिकैनी। और जमा के लिए हो जाएगा अस्सादिकूना, अस्सादिकीना, अस्सादिकीना। यानी कि वही आनी और ईना के इजाफा करेंगे। ठीक है, मुसन्ना के लिए। और जमा के लिए ऊना और ईना का इजाफा। ठीक है, मुसन्ना के लिए आनी और यईनी का इजाफा और जमा के लिए ऊना और ईना का इजाफा। यानी कि पैटर्न वही रहेगा, सिर्फ अलिफ लाम दाखिल हुआ है। और मुफरद में क्या फर्क आया है कि मुफरद में नकिरा इस्म के अंदर तनवीन आखिरी कलिमा पे रह गई थी, आखिरी हरफ के ऊपर, जबकि मारिफा में तनवीन की बजाय वो सिंगल हरकत रह जाएगी। ठीक है, लेकिन मुफरद इसम जो है वो पहचाना अपने हरफ की हरकत से ही पहचाना जाएगा कि वो मरफू है, मंसूब है या मजरूर है। अगर पेश या दो पेश है मरफू, अगर जबर या दो जबर है तो मंसूब, और अगर जेर या दो जेर है तो मजरूर। ठीक है, तो उसके बाद हमने आगे देखा था कि इस्मुल अलम। इस्मुल अलम मीन दैट कि किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम, किसी कबीले या कौम का नाम, किसी काम का नाम, ये सब इस्मुल अलम में आते हैं। यानी कि जो भी नाम होते हैं वो सारे इस्मुल अलम में आएंगे। ठीक है, अलम कहते हैं निशानी को। तो यहाँ पर जैसे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है नूह, मूसा, मुहम्मद, इब्राहिम, ये सब जैसे भी नाम यानी कि हमें मालूम है कि ये नाम है, तो ये मारिफा की पहचान है। ठीक है, तो ये इस्मुल अलम भी मारिफा में होगा। अब आगे हम आगे देखा था कि कभी जो है वो हमें तनवीन के साथ मिलता है इसम, और कभी वही इसम जो है वो हमें एक हरकत के साथ मिलता है। यानी कि मुफरद इसम जो है वो नकीरा, अगर इसम आपको नजर आता है तनवीन के साथ इसम नजर आता है तो वो ज्यादातर चांसेस हैं कि वो मुफरद इसम होगा। ठीक है, मुफरद होगा और नकीरा होगा। ठीक है, लेकिन जो इस्मुल अलम है वो आपको तनवीन के साथ मिल सकते हैं, लेकिन उसकी तनवीन देकर आपने ये जज नहीं कर लेना कि ये नकीरा इसम है। नाम है तो इट मीन कि उसपे तनवीन हो या सिंगल हरकत हो, वो मारिफा ही कंसीडर होगा। ठीक है, नाम है किसी का, किसी कौम का नाम है, किसी कबीले का नाम है, किसी शख्स का नाम है, और अगर उस पे तनवीन है तो वो आपने कंसीडर करना है कि ये मारिफा इसम है। अदरवाइज आमतौर पर क्या है कि कोई भी इसम आपको तनवीन के साथ नजर आए तो आपने कहना है कि ये नकीरा इसम है। लेकिन सिर्फ इस्मुल अलम यानी कि नाम जो होंगे वो अगर तनवीन के साथ भी आए ना तो वो आपने मारिफा नहीं, मारिफा ही कंसीडर करने हैं, नकीरा कंसीडर नहीं करने। ठीक है, तो उसके बाद हमने जमायर पढ़े थे। जमायर जो थे वो दो तरह के थे, ज़मीरे मुत्तसिल और ज़मीरे मुनफसिल। हमने पढ़ा था कि ज़मीरे मुनफसिल जो है वो मरफू होंगे हमेशा, इराबी हालत उनकी हमेशा मरफू आएगी। मुनफसिल मीन कि वो डिटैच होते हैं, यानी कि ये इसम के साथ जुड़कर नहीं आते बल्कि ये अलग आपको नजर आते हैं। तो इसका चार्ट हमने पढ़ा था। मुज़क्कर गायब के लिए हुआ, हुमा, हुम। मुअन्नस गायबा के लिए हिया, हुमा, हुन्ना। और मुज़क्कर हाजिर के लिए अंता, अंतुमा, अंतुम। और मुअन्नस हाजिरा के लिए अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। और मुतकल्लिम के लिए था अना, नहनु। ठीक है, तो उसके बाद हमने पढ़ा था ज़मीरे मुत्तसिल यानी कि अटैच प्रोनाउन। अब ये इसम के साथ अटैच होकर आते हैं और ये इनकी इराबी हालत जो है वो हमेशा मंसूब या मजरूर होगी। ठीक है, तो मुज़क्कर गायब के लिए आएगा हु, हुमा, हुम। मुअन्नस गायबा के लिए आएगा हा, हुमा, हुना। और मुज़क्कर हाजिर के लिए आएगा का, कुमा, कुम। और मुअन्नस हाजिरा के लिए आएगा की, कुमा, कुन्ना। मुतकल्लिम के लिए ही और नी दोनों इस्तेमाल होते हैं, और ना और ना। और ये भी हमने देखा था कि ही जो है ये इसम के साथ अटैच होकर आता है, नी जो है ये फेल के साथ अटैच होकर आता है। तो अभी हमने फेल तो पढ़ा नहीं है, तो इसलिए नी वाले जितने भी कलिमात होंगे वो आपने छोड़ देने हैं, सिर्फ ही वाले लेने हैं। ही से आपको पता चल जाएगा कि ये इसम के साथ अटैच हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने देखा अच्छा ये हमारा अब नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, इस्मुल इशारा।
इसमुल इशारा क्या होता है, जैसे नाम से ही जाहिर है, इशारा करना। ठीक है, जो लफ्ज किसी की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो, इससे इस्मुल इशारा कहा जाता है। उर्दू में हम इसको कहते हैं ये वो, यानी कि हम किसी चीज की तरफ इशारा करना हो, जो अगर पास पड़ी हो तो हम ये का इशारा करते हैं, और अगर वही चीज दूर पड़ी हो तो हम उसके लिए वो का इशारा करते हैं। जबकि इंग्लिश में हम इसको दिस और दैट से पहचानते हैं कि दिस इज अ बुक या दैट इज अ बुक, यानी कि हम इस तरह से बात करते हैं। तो अरेबिक में क्या इसके लिए टर्म इस्तेमाल होगी, वो हम देखते हैं कि करीब के लिए उसका नाम होगा इशारा करीब, और दूर के लिए होगा इशारा बाईद। ठीक है, दूर के लिए क्या होगा, इशारा बाईद। तो अभी हम इसको आगे देखते हैं। जब हम करीब के लिए बात करेंगे तो मुजक्कर के लिए होगा, ठीक है, मुजक्कर के लिए होगा हाजा। ठीक है, मुजक्कर के लिए होगा हाजा, मुसन्ना के लिए होगा हाजानी, और जमा के लिए मुजक्कर और मोनस दोनों के लिए सेम है, हाउलाई। ठीक है, मोनस के लिए हाजिही और मुसन्ना के लिए हातानी। ठीक है, और जमा यानी कि मोनस के लिए हाउलाई, यानी कि मुजक्कर और मोनस जमा के लिए दोनों एक ही इशारा इस्तेमाल होता है। और आप देखें हाजा मुफरद है, और हमने जैसे वो आनी का वजन पड़ा है मुसन्ना बनाने के लिए, सेम उसी को फॉलो किया गया है, ये बन गया हादानी। ठीक है, और हाजी ही, और इससे बन गया हातानी। आपको याद है कि हाजी ही, यानी कि ये तो अब हम हाजी ही इसमें इशारा है, यहाँ पर ये दो नुक्ते हमने पढ़े थे कि अगर मोन्नस है तो ये दो नुक्ते थे, और इसको फिर हम आगे आनी ये लगाते थे, और ये दो नुक्ते यानी कि गोल ता जो थी वो खुली ता में बदल जाती थी। तो ये उसी पैटर्न पे हातानी चेंजेस के बाद यहाँ पर हातानी लिखा गया है। ठीक है, इसको एज इट इज आप लोगों ने याद करना है, जैसे आपने जमायर का चार्ट याद किया है, इसी तरह से इस्मुल इशारा का चार्ट याद करना है। हाजा, हाजानी मुसन्ना के लिए, हाउलाई। ठीक है, हाजी ही मोन्नस वाहिद, और हातानी मुसन्ना मोन्नस, और हाउलाई जमा मोन्नस। ठीक है, यानी कि मुजक्कर और मोन्नस जमा में दोनों के लिए एक ही सीगा है। और सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो हाजा, हाउलाई और उलाई का इस्तेमाल हुए कुरान पाक में। ठीक है, ये भी आए हैं लेकिन ये कम कम आए हैं। हाजा तो आपको पता है कि बहुत बार हम देखते हैं, हाउलाई उलाई का ये भी। ठीक है, तो ये जो अभी हमने हा वाले जो शुरू हो रहे हैं ना, जो भी इसमें इशारा हा के साथ शुरू हो रहे हैं, आप देखें सब हा के साथ शुरू हो रहे हैं। ठीक है, ये पांचों जो हमारे पास वजन यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सब हा के साथ स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो हा के साथ स्टार्ट हो रहे हैं वो आप याद रख ले कि ये करीब के लिए है। ठीक है, और जो जो है वो का पर एंड हो रहे हैं, जैसे अभी हम आगे पढ़ते हैं तो फिर इसको फिर आपने याद रखना है कि वो दूर के लिए है। यानी कि अब ये बईद का इशारा है दूर के लिए, जाली का, जानी का मुसन्ना के लिए, और उलाई का जमा मुजक्कर के लिए, तिल का मोन्नस के लिए, तानी का जमा मोन्नस के मुसन्ना मोन्नस के लिए, और उलाई का जमा मोनस के लिए। यानी कि इसमें भी मुजक्कर और मोनस की जमा के लिए एक ही सीगा इस्तेमाल हुआ है। जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। ठीक है, तो ये बस आपको एज इट इज याद करने हैं, और इसका एक हिंट जो है, जैसे मैंने इसको याद किया था वो मैं बता देती हूँ आपको, कि अगर इशारा जो है वो हा के साथ स्टार्ट हो रहा है तो इट मीन ये करीब का इशारा है। ठीक है, और अगर इशारा हा के साथ नहीं स्टार्ट हो रहा है, इट मीन कि वो दूर का इशारा है। हाजा का तर्जुमा जब हम करेंगे तो ये के साथ करेंगे, जबकि जो जालिका का तर्जुमा करेंगे तो हम वो के साथ यानी कि दूर की तरफ इशारा करते हुए हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसको आपने एज इट इज चार्ट को याद कर लेना है। करीब के लिए क्या है, हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजी ही, हातानी, हाउलाई। और जो दूर का इशारा है वो क्या है, मुजक्कर के लिए दालिका, जानिका, उलाइका, और मोनस के लिए क्या है, तिलका, तानिका, उलाइका। ठीक है, ये आपने एज इट इज याद करना है, और याद करने के बाद कुरान में से इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये दूर का इशारा है या ये करीब का इशारा है, यानी कि इशारा करीब है या इशारा बईद है। ठीक है, ये आप लोगों ने कुरान में आइडेंटिफाई करना है इंशाल्लाह। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद है अगला पार्ट, इस्मुल मौसूल। ठीक है, इस्मुल मौसूल।
अब इसम मौसूल क्या होता है? इसम मौसूल जुमलों में इसम और फ़िल को जोड़ने के काम आता है, जैसे जो, जिस, जिसे वगैरह। उर्दू में तो हमें पता है कि ये वर्ड जोड़ने के लिए आते हैं और इनका कोई ख़ास मतलब नहीं होता। लेकिन अरेबिक में भी ये जोड़ने के लिए आएँगे, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि इसम मौसूल होते क्या हैं, ठीक है? तो आज इंशाअल्लाह हम उनको देखते हैं। यानी कि इन वर्ड्स का इस्मुल मौसूल का अपना कोई मायना नहीं होता, ये अकेले कुछ नहीं होते। ये जुमलों को या बात को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? तो इसको भी हम देख लेते हैं और बहुत देखे हुए हैं हमने कुरान में, सिर्फ हमें इनका नाम मालूम नहीं था जो आज मालूम हो रहा है, तो पढ़ा हुआ हमने इनको बेशुमार है, ठीक है? तो इसका भी ये चार्ट आपको याद करना है। मुज़क्कर मुफ़रद क्या है? अल्लाज़ी, ठीक है? मुज़क्कर मुफ़रद क्या है? अल्लाज़ी, मुसन्ना क्या है? अल्लाज़ानी और अल्लाज़ैनी, यानी कि ज़ानी होगा तो मरफ़ू हालत और ज़ैनी होगा तो मंसूब या मजरूर हालत, ठीक है? अल्लाज़ीना जमा के लिए, अल्लाज़ीना जमा के लिए आपने देखा होगा कुरान पाक में बहुत जगहों पे अल्लाज़ीना, अल्लाज़ी और अल्लाज़ीना तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है? मुअन्नस के लिए क्या है? अल्लाती, अल्लातानी, अल्लातैनी, अल्लाती, ठीक है? तो इसी तरह से आपने एज़ इट इज़ इनको याद करना है और कुरान पाक में से पहचानना है। और जब ये इस्म आपको मिलेंगे तो आपने इनका नाम लेना है, ये इस्म मौसूल है और ये हमारे पास मारिफ़ा हैं, ठीक है? इस्म मौसूल है और इराब वसत में क्या है? ये मारिफ़ा है। फिर ये आगे हम इसको देखेंगे, इनका अपना इस्मुल मौसूल का अपना कोई इराब नहीं होता, ठीक है? इनका अपना यानी कि ये हमेशा आपको अल्लाज़ी ही नज़र आएगा। तो अल्लाज़ी मरफ़ू भी हो सकता है, मंसूब भी हो सकता है और ये मजरूर भी हो सकता है, ठीक है? तो अब हम देख लेते हैं कि अच्छा जी, हम अदद और जिन्स में मुताबिक़त होगी, यानी कि जब भी ये अल्लाह ही मैंने आपको बताया ना, ये अकेले कुछ नहीं होते, ये किसी चीज़ को या किसी बात को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? तो अगर इससे अगला इस्म या पिछला इस्म जो है, वो वाहिद है, तो अल्लाज़ी इस्तेमाल होगा। अगर वो जिसको यानी कि जोड़ा जा रहा है, वो अगर जमा होगा तो अल्लाज़ीना इस्तेमाल होगा। तो इंशाल्लाह ये हम प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगी। अभी फ़िलहाल आपका करने का काम ये है कि आपने एज़ इट इज़ इसको याद करना है कि मुफ़रद में इसका क्या है अल्लाज़ी, मुसन्ना में क्या है, जमा में क्या है। अल्लाज़ानी मुसन्ना और अल्लाज़ैनी और जमा में अल्लाज़ीना और मुअन्नथ के अल्लाती, अल्लातानी, अल्लातैनी, अल्लाती। ठीक है? ये सिर्फ़ आपने एज़ इट इज़ याद कर लेने हैं। तो ये वाहिद और अदद और जिन्स में मुताबिकत होगी, ये हम इंशाल्लाह जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर खुद ही समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अभी सिर्फ करने का काम क्या है कि इन्हीं कलिमात को कुरान से पहचानना है, इनका नाम लेना है कि ये इस्मुल मौसूल वाहिद है या जमा है। ठीक है? और दूसरे नंबर पे हमने बताना है कि ये मारिफ़ा है या ये नकीरा है। तो आपको मालूम हो गया कि जितने भी हम ये पढ़ रहे हैं ना, ये मारिफ़ा के पैटर्न्स पढ़ रहे हैं हम, कि मारिफ़ा अगर इस्म होगा, तो वो इस्मुल मौसूल जो है वो मारिफ़ा होगा, इस्मुल इशारा मारिफ़ा होगा। यानी कि ये जितने भी वर्ड्स अभी हमने पढ़े हैं, तो ये सब मारिफ़ा की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो अगर इन पे फुलफिल नहीं हो रहा होगा कोई लफ्ज़, तो हम उसको नकीरा में डाल देंगे। अदरवाइज़ सब जो है ये मारिफ़ा की कैटेगरी में आ रहे हैं। इस्म मौसूल मारिफ़ा है, इस्मुल इशारा मारिफ़ा है, इस्मुल अलम मारिफ़ा है, मुअर्रफ़ बिल लाम मारिफ़ा है। अगर किसी इस्म के साथ ज़माइर अटैच होकर आ जाते हैं या डीअटैच ज़माइर भी आते हैं, तो वो मारिफ़ा होने की निशानी है। ठीक है? तो अभी हमने ये देख लिया कि जो ये 2 तरह के होते हैं इस्मुल मौसूल। एक तो ये हमने चार्ट देख लिया कि अल्लाज़ी, अल्लाज़ानी, अल्लाज़ैनी, अल्लाज़ीना, मुअन्नस के लिए अल्लाती, अल्लातानी, अल्लातैनी, अल्लाती, ठीक है? और दूसरा जो इस्तेमाल होता है, ये मैंने आपको बताया कि अदद और जिन्स में मुताबिकत रखता है। जबकि ये वाले जो 2 इस्मुल मौसूल हैं मुश्तरक इस्तेमाल होते हैं, यानी कि इसमें जेंडर वगैरह का कोई ख़ास स्पेसिफ़िकेशन नहीं होती कि वो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं या मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ये दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? इसका नाम है मन मौसूला और इसका नाम है मा मौसूला। ये सिर्फ़ अभी आप नाम देख लें, ठीक है? जब हम इंशाल्लाह आगे जाएँगे, पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इसको हम डिटेल से देखेंगे। ये सिर्फ़ अभी मैं इनके नाम आपको बता रही हूँ कि एक ये भी इसमें मौसूल है और ये भी इसमें मौसूल है।
من اور ماں، ٹھیک ہے، یہ والے تو جینڈر کے ساتھ آئیں گے، یعنی کہ جنس کے ساتھ آئیں گے، مذکر ہوگا تو مذکر والے سیگے آئیں گے، مونس ہوگا تو مونس والے سیگے آئیں گے، جبکہ من اور ماں جو ہے اس میں جینڈر جو ہے وہ آپ کو اسپیسیفک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، عدد اور جنس میں مطابقت ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مذکر ہے تو مذکر آگے استعمال ہوگی، یہ رینڈم استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے من کا بھی استعمال ہوتا ہے، یہ عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم نے پڑھا تھا نا جمع مکسر عاقل والی ہم نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے، تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ جب ہم نے، ٹھیک ہے، ابھی اس کو ہم نے یہ من موصولہ کا بھی استعمال ہوگا عاقل کے لیے، عاقل کیا تھا کہ جو انسان فرشتے اور جن ہیں وہ عاقل ہیں، باقی اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ غیر عاقل میں آتی ہیں، تو جب کوئی غیر عاقل اسم آئے گا تو اس کے لیے ما موصولہ استعمال ہوگا، اور جب کوئی عاقل اسم آئے گا تو اس کے لیے من موصولہ استعمال ہوگا، یہ صرف ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو تعارف دیا ہے، کسی کو یاد رہتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز جو ہے نا آپ اس کو بھی لیو کر دیں اس پورشن کو، ہم انشاءاللہ آگے جائیں گے پریکٹس کریں گے تو پھر اس کو اچھی طرح اور ڈیٹیل سے دیکھیں گے، اس چارٹ کو آپ نے یاد کرنا ہے، یہ والا جو ہے ٹھیک ہے جس میں مذکر کے الگ سیگے ہیں، مونس کے الگ سیگے ہیں، یہ آپ نے یاد کرنا ہے، قرآن سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، یہ من اور ماں بھی اگر کوئی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے تو اس کو کر لے، ادروائز جو ہے وہ ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے ڈیٹیل سے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس منادا، ٹھیک ہے، یہ منادا والا پورشن بھی ہے، بس آپ دیکھ لیں اور انشاءاللہ اس کو ہمیں سمجھ آئے گا تھوڑی ڈیٹیل میں جب ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، منادا کیا ہوتا ہے، جیسے منادا کا مطلب اپنے پکارنا، اعلان کرنا، ٹھیک ہے، حرف ندا کسی شخص کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس سے منادا نکرہ اسم معرفہ بن جاتا ہے، یعنی کہ جس کو پکارا جا رہا ہو، جیسے ہم کہتے ہیں یا رجولو، ٹھیک ہے، رجولو مطلب کوئی بھی آدمی، اینی مین، اور اگر کسی اسپیشل آدمی کو بلانا ہو، جیسے اس پکچر میں بھی آپ کو ہائی لائٹ کر کے ریڈ کلر میں دکھایا گیا ہے کہ اس خاص بندے کو بلانا ہے تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے یا رجولو، تو جب یا لگا تو یہ تنوین آٹومیٹکلی ختم ہو گئی، اور اس نے نکرہ اسم کو معرفہ بنا دیا، اس یا لگنے کی وجہ سے اس اسم کو اس نے معرفہ بنا دیا، یعنی کہ اس میں معرفہ کی کوئی نشانی نہیں ہے، نہ تو یہ نام ہے، نہ اس پہ الف لام داخل ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی ضمیر لگی ہوئی ہے، نہ کوئی اس میں اشارہ، نہ کوئی اس میں مصول، کچھ نہیں ہے، لیکن اگر کسی کلمہ کے ساتھ یا حرف ندا، یعنی کہ حرف ندا اور بھی ہے لیکن عام طور پر یہ یا استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر ہمیں معلوم ہے اس کے بارے میں، تو اگر کوئی حرف ندا لگا ہوا ہے کسی اسم کے ساتھ تو وہ اسم جو ہے وہ ہمارے پاس معرفہ بن جائے گی، یعنی کہ یہ رجولو جو ہے یہ نکرہ اسم تھا لیکن یا لگنے کی وجہ سے یہ معرفہ بن گیا، ٹھیک ہے، ابھی بس اتنا پوائنٹ آپ کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ، تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں، تو اس میں ہے مضاف الی المعرفہ، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو پوائنٹ ہم انشاءاللہ اس کے بعد اگلا ٹاپک پڑھیں گے تو یہ پوائنٹ ذرا ڈیٹیل میں سمجھ آئے گا، لیکن آج صرف اس کو دیکھ لیں، جب کسی نکرہ اسم کی نسبت کسی معرفہ اسم کی طرف کی جائے تو وہ نکرہ اسم بھی معرفہ ہو جائے گا، جیسے اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، اب کتاب، کوئی بھی کتاب، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کتاب المین کوئی بھی کتاب، انگلش، میتھ، ایس ایس ٹی، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، لیکن جب الکتاب لگ گیا اٹ مین کہ وہ خاص ہو گئی، اور اس کو ایک خاص کرنے کا ایک دوسرا طریقہ کون سا ہے کہ اس کتاب کے ساتھ اس پرسن کا نام لگا دیا جائے، یعنی کہ کتاب حامدن، ٹھیک ہے، کتاب حامدن یعنی کہ حامد کی کتاب، تو یہ اب خاص ہو گیا نا، تو اب یہ خاص ہو گیا، ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر دوسری مثال میں ہے کتاب، کوئی بھی کتاب، اب کتاب اللہ یعنی کہ اللہ کی کتاب، ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب، اب یہ اللہ کی کتاب خاص ہو گئی، یعنی کہ اس اسم کے ساتھ کسی پرسن کا، کسی چیز کا نام لگا دیا جائے تو وہ خاص ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ خاص ہو جاتا ہے، وہ معرفہ بن جاتا ہے نکرہ سے، وہ کیا ہے کہ نکرہ اسم کے ساتھ آگے کسی کا نام اٹیچ کر دیا جائے، یہ فی الحال آپ بس نام کے ساتھ اس کو دیکھیں گے کیونکہ ابھی ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو پھر آپ کو زیادہ اور سمجھ آئے گی، اس میں اور بھی چیزیں آتی ہیں لیکن ابھی ہم صرف بات کر رہے ہیں کہ نام آپ آرام سے پہچان سکتی ہیں، جیسے کتاب حامدین ہے تو یہ حامد کی کتاب، ٹھیک ہے، اب نکرہ اسم کے بعد یعنی کہ اس کے اوپر کوئی بھی الف لام وغیرہ داخل نہیں تھے، کوئی بھی ضمائر اٹیچ نہیں تھے، کوئی بھی اس میں موصول، اس میں اشارہ اس کے ساتھ نہیں تھے، لیکن یہ
मारिफा कैसे बना कि इसके बाद फौरन एक नाम आपको नजर आ रहा है, तो ये मारिफा इसम हो गए, ठीक है, ये दोनों इसम क्या बन गए हैं, ये मारिफा बन गए हैं। तो इसी तरह से किताबुल्लाही की मिसाल हमने देख ली है। और मुजाफ इलल मारिफा में क्या है, कौमुन नकीरा कौम, यानी कि कोई भी कौम, कोई भी कौम, जितनी भी कौमें अल्लाह ताला ने पैदा की उनमें से, उसमें से कोई भी कौम हो सकती है। मारिफा कैसे हुई कि कौमु नूहिन, यानी कि कौमुन के बाद, कौमु के बाद आपको नूही नाम मिल गया। अब ये तनवीन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है जब ये इसम मारिफा बनता है, ठीक है। यानी कि नकीरा इसम होगा तो उसमें तनवीन आपको मिलेगी, जबकि मारिफा इसम होगा तो उसमें तनवीन आपको हर हाल में ड्रॉप नजर आएगी, क्योंकि जब आपने देखा कि अलिफ लाम दाखिल हुआ तो भी तनवीन हट गई। तो जब यहाँ पर ये अब कौम नूहीन आया तो यहाँ पर भी तनवीन हट गई, सिर्फ इस्मुल अलम में तनवीन रही है, बाकी सब में जो है वो मारिफा जब बने तो तनवीन हट जाती है, ठीक है। तो ये हो गया कौमु नूहिन, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि ये समझ आ गया। अगर इंशाल्लाह ये हम मुरक्कबे इजाफी पढ़ेंगे आगे तो फिर ये और डिटेल में समझ आएगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना कि नकिरा इसम के साथ आपको कोई आगे नाम नजर आए तो वो इसम नकिरा इसम जो है, यानी कि ये सिंगल हरकत वाला, यानी कि वो आपको तनवीन के बगैर नजर आए और साथ उसको नाम नजर आए, तो आप कहेंगे कि ये दोनों इसम जो है ये मारिफा की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। मुजाफ इलल मारिफा, अभी सिर्फ इसका नाम याद करें और इतनी पहचान करें इंशाल्लाह, ठीक है।